Common form of written communication is letter. I mean, letter is the most common form of written communication. Common form of written communication. 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 See beta, it is an indispensable activity of human society
In the present time, with the boom in the methods of communication, in the methods of communication, many of us don't have time many of us don't have time to write letters, यानी हम में से बहुत से लोगों के पास क्या नहीं, लेटर लिखने के लिए टाइम नहीं है. So telephone, fax and email have replaced. So telephone, fax and email have replaced personal letters. देखिए समझो इतनी सी बात पहले. लेटर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. आई मीन इट इज द मीडियम, formal medium to interact with the society, interact with the people. It is an indispensable activity of human society, यानी human society की एक indispensable activity है, जिसे more essential कह सकता हूँ मैं, अपरिहार्य गतिविधि है. In the present time, with the boom in the method of communication, यानी आपको पता ही है communication के method में boom आ गया है, यानी बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं जिसके थ्रू हम जो कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो इसी की वजह से many of us don't have time to write letters. इसीलिए हम सोचते हैं कि कौन लिखेगा लेटर्स. ना तो लोगों को आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर आती है, ना ही उनके पास टाइम है. सो टेलीफोन, फैक्स एंड ईमेल हैव रिप्लेस द पर्सनल लेटर्स. पर्सनल लेटर्स को क्या कर दिया है, टेलीफोन और फैक्स ने रिप्लेस कर दिया है. However, formal letters are still in vogue. अगर देखा जाए ना तो formal letters are still in vogue. पहले चेंज करके लिखना है. However, the formal letters are still in vogue. vogue का मतलब होता है चलन में होना, फैशन में होना. कॉमर्स, ट्रेड, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ट्रेड, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, complaints and other dealings. Transaction and communication with the people are still considered थ्रू लेटर्स ओनली. किसके थ्रू किया जाता है, लेटर्स के थ्रू ही किया जाता है. तो कंसीडर की जब कंडक्टेड करना, ठीक है, कंडक्टेड
through letters only. Through letters only. Is it visible to you? The lower part of the section written, visible or not? No, sir. Not visible. Then just wait a minute. Now, Yes, sir. good. Written. Yes, sir. Good. Now write types of letters. There are two basic types of letters. Number one, formal. Number two, informal letter. Now again write formal letter. Letters written to government or non-government officials are called formal letters. Number two, informal letters. Letters written to friends, members of the family, and relatives are called informal letters.
क्या कहते हैं इनको, इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं. But you know, in syllabus only formal letter is given, so we will discuss only formal. But you can write down both. Written. Yes, sir. Yes, sir. Good. All right, types of formal letter. Formal letters are of the following type. Number 1, business letter. Number 2, official letters. Number 3, editorial letters. जिसे हम लेटर टू एडिटर भी कहते हैं. And number 4, application for job. These are the basic categories in which the formal letter can be categorized. Right? इसको लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन भी कहते हैं. नोट करो. Noted? Noted or not? Yes, sir. Now see the subtypes of business letters. See, business letters are written for the purpose of inquiry, order placing, cancellation, and complaints. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे. इंक्वायरी की स्पेलिंग वैसे दोनों ठीक है, लेकिन इनमें स्लाइटली वेरिएशन होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है. INQUIR भी ठीक है और E भी ठीक है. ओके,
इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद क्या करते हैं, इंक्वायरी के बाद होता है प्लेसिंग ऑर्डर, देन इसके बाद आता है आपका कंप्लेंट, देन कंप्लेंट करने के बाद भी कोई बात नहीं बनती तो फिर कैंसिलेशन। These are the basic categories of business letters. Noted? Yes, sir. Now see business letter. Number 1. Business letter are different from personal letter. In tone and form. These letters demand a formal tone and ट्रीटमेंट। यानी ये ऐसे लेटर होते हैं जिनका टोन एंड ट्रीटमेंट कैसा होता है, एकदम से फॉर्मल होता है। यानी पर्सनल एक्सप्रेशन फाइंड्स नो रूम इन सच लेटर्स, कोई रूम ही नहीं होता पर्सनल फीलिंग्स का। These letters are generally written by or to business firms by or to बिजनेस फर्म। किसके लिखे जाते हैं, बिजनेस फर्म्स के, एक फर्म से दूसरे फर्म के लिए लिखे जाते हैं। सो दे मस्ट बी सिंपल एंड सिस्टमैटिक। एक मिनट वेट कर लो, मैं मार्कर नहीं कर लूँ।
simple and systematic, brief and specific, ऐसे होना चाहिए, brief and specific होने चाहिए। नोट करो जल्दी से। Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. अब देखो पॉइंट्स टू रिमेम्बर। Be brief, clear and to the point, कोई फालतू की बात नहीं लिखनी है। यूज सेपरेट पैराग्राफ और सेपरेट टॉपिक। The first para should indicate the theme of the letter. Make a factual statement of facts. Avoid use of high sounding words. Instead, use simple vocabulary. Simple and coherent words or phrases. Avoid clumsy expression. Be polite even when lodging complaints and criticizing.
sir, please said. Hmm. एक मिनट हो गया ना आपकी फॉर्म No, में sir. ले आओ नहीं हुआ सर रुको। हाँ हाँ नहीं किया नहीं किया बच गया कौन सा छूट गया बताओ फिर कर देता हूँ नहीं सर, लास्ट ही पॉइंट बचा था। तो कर लो आराम से कर लो कोई नहीं मैं बैठ सकता हूँ डन। डन गुड एक चीज और नोट कर लो रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट ब्लॉक फॉर्मेट वो कौन कौन से देखिए देखिए ईच ब्लॉक पहला है बिगिन हालांकि ये चीज पता है आपको विद द मार्जिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द मार्जिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सेकंड लिखना है एक्स्ट्रा स्पेस should be left between different sections and paragraph यानी कि जब भी आप पैरा चेंज करेंगे तो उसमें एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे ऑलराइट अगला है कॉमेट पंक्चुएशन मार्क्स इन एड्रेस जो पहले कॉमा लगता था ना एड्रेस में सैल्यूटेशन में वो सब क्या कर देना आपको छोड़ देना कॉमेट करना है एड्रेस एंड डेट एड्रेस और डेट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आता
इतना कर लो। Sir, done. Just wait a minute, I am filling ink in the marker. Now see format and layout. Business letter. See, I am talking about common letters which are written from one farm to the other farm. They follow the same format like we use in editorial letters. Alright, but there are some letters which are written on the letterhead. They have some different and common, different and unique things that I will tell you. Okay. So first of all, see a common format like sender's address, then leave a blank line, then date. While writing date, do not write the word DATE. Directly write down the word. Okay. For example, today it is 18th June 2021. Right. And then again blank line. Sir, 17. Oh, it's 17. I thought it is 18. No issue. Then again blank line. Then write receiver's address. Then again leave a blank line. And now you have to write down subject. You might have seen two formats regarding writing down the salutation first, subject later, and subject first, salutation later. They both are considered correct. You can apply one of them. Okay. कोई भी उनमें से एक यूज कर सकते हैं. Then again blank line. And now salutation. Then you have to start your content. Now your content, first para, introductory or thematic. Word limit 30 to 40. And then blank line छोड़नी है आपको. क्या छोड़नी है? Blank line. Then para 2, development of ideas. यानी आपको अपनी बात रखनी है. या ये लिख दो. Explanation of the topic on which you are writing the letter. ये था आपका पैरा 2. And then पैरा
3 कंक्लूजन। इसकी जो आपकी वर्ड लिमिट होगी 70 to 80 वर्ड, एंड अगेन दिस विल बी ऑफ 30 to 40 वर्ड। टोटल जो वर्ड लिमिट होती है वो आपकी 120 to 150 होती है। ओके, ये आपका 20 वर्ड में भी हो सकता है। इसको ना ऐसा करो 25 to 30 कर लो। ओके, सर पैरा 2 और 3 के बीच में ब्लैंक लाइन ही है। हाँ ब्लैक लाइन है, मैं भूल गया, सॉरी, यहाँ पर एक ब्लैक लाइन है। वो सर सैल्यूटेशन और कंटेंट के बीच में भी नहीं होगी। सैल्यूटेशन और नहीं, कंटेंट के बीच कोई में। ब्लैंक लाइन, नो नो नो, देयर इज नो ब्लैंक लाइन। यहाँ पर सैल्यूटेशन के बाद ना ये आपका सैल्यूटेशन रहा, यहाँ आप कोई भी ब्लैंक लाइन नहीं देना, डायरेक्टली आपको स्टार्ट कर देना ठीक उसके जस्ट नीचे से, यहीं से। ठीक है, इसमें कोई ब्लैंक लाइन नहीं आती। कुछ लोगों को आदत होती है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से नहीं करना, आपको स्टार्टिंग से यहीं से करना है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर इंडेंटेशन लेके जाना है। आप देख रहे हो मैंने सारा का सारा पैरेलल लिखा हुआ है, द सेम यू हैव टू फॉलो। ओके, जहाँ जहाँ ब्लैंक लाइन आपको स्पेस देना था वहाँ मैंने बता दिया है। अच्छा, इन ब्लैंक लाइन के यहाँ वाला जो स्पेस है ना, इसके बारे में एक चीज है, मैं अभी बिफोर एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू यू। सी, अगर आपका फर्स्ट पैरा खत्म हो गया, एक वर्ड आपका यहाँ आ गया, यानी यहाँ खत्म हुआ है, इन दैट केस यू मे और मे नॉट लीव अ ब्लैंक लाइन, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही वर्ड आया है, तो आपके लिए ये वाला स्पेस काफी था, यानी कि आपकी पूरी ऑलमोस्ट लाइन बच गई। ओके, लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्ररी टू इट, अगर आपका जो फर्स्ट पैरा यहाँ फिनिश हो रहा है, तब आपको उस केस में छोड़नी है, क्योंकि आप हाईलाइट कर रहे हैं कि ये कुछ और था, अब मैं कुछ और चीजें बता रहा हूँ, उस पर जरा ध्यान दिया जाए। ऑलराइट, यस सर। so this you have to follow. Noted or not? Yes, sir. एक बार इसकी मार्किंग स्कीम भी देख लीजिए, मैं आपको बता दूं। देखिए मार्किंग स्कीम कैसी होती है इसकी। मार्किंग स्कीम देखिए, फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 2, जीए का मतलब ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ये भी आपकी 2 मार्क्स की होती है। तो अगर आपने कहीं फॉर्मेट गलत किया है तो आपका हाफ कट जाएगा, ठीक है, अगर इनमें से कहीं किया है तो काट लेगा। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है ना, जहां आप अपना आर्गुमेंट नहीं रख सकते एग्जामिनर के सामने, वो होता है कंटेंट। कंटेंट में वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से बात को अपनी को रखा है, क्या आपने सारी बात कह दी या नहीं, क्या आपने अपनी बात को तरीके से रखा है या नहीं रखा है, ये चीज। और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी में आती है आपकी टेंस की एरर हो गई, एक्सप्रेशन हो गई, फ्लुएंसी हो गई, ये सारी चीजें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक टॉपिक की बात कर रहे थे, आप जो है हॉकी स्टिक्स को परचेज करने की, और फिर आगे आप कंप्लेन करने कि क्रिकेट बैट आपके खराब निकल गए। नहीं, पहले आप हॉकी स्टिक्स की पूरी बात कीजिए, तब आपको अगली बात को शुरू करना है। राइट, सो दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी। Fluency, not only in spoken, fluency is judged and considered in written form of communication as well. The way we feel good when someone is speaking fluently in front of us, the same thing is judged in written communication as well. In written communication, there you may not feel the oral sound, but you can feel the expression. You can feel the things, whether the things are being stated in a systematic way or some hinders are there in between them. कई बार क्या होता है कि कोई कहीं कुछ और बात कर दी, फिर जो उसके जस्ट आगे फुल स्टॉप लगा के और कुछ और बात कर दी उसी सेंटेंस में। दिस इज व्हाट द डिस्टर्ब द फ्लुएंसी, इससे आपकी फ्लुएंसी डिस्टर्ब होती है। तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपने इंट्रोडक्टरी पैरा देने के बाद में जब जब आप अगर देखिए मैंने 3 पैराग्राफ बताया आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सेकंड पैरा को एक और एडिशनल पैरा में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 4 पैराग्राफ बना सकते हैं।
जिसमें आप ऊपर कर दो क्या नाम है सारे के सारे आइटम्स की बात, हमें ये आइटम्स परचेज करने हैं, और नीचे आप जो बात कर दो मोड ऑफ पेमेंट की, तो इस तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट। एंड देन आफ्टर दैट यू राइट courteous लीव टेकिंग। क्या लिखेंगे? इसके नीचे ही लिखो courteous लीव टेकिंग, जिसे कहता है कि आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू। courteous लीव टेकिंग। फिर लिखो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है योर स्टोरी वगैरह। देन सिग्नेचर, देन नेम, देन अगर जरूरी है तो डेजिग्नेशन, राइट। ये चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अभी मैं आपको एक दो सॉल्व लेटर्स भेजूंगा, ठीक है, उनको कर लेना। एंड देन टुमारो अगेन आई विल टीच यू हाउ टू ड्राफ्ट अ फॉर्मल बिजनेस लेटर, ओके। The time is about to over, just 1 minute is left. And before that, again, I would like to ensure that I gave some questions. Did I give some additional questions from the chapter The Enemy? सर एक बार भेजे थे आपने। ये थे सर आप। सर भेजे थे एक बार। I am asking about yesterday only, not एक बार। सर कल ही भेजे। कल नहीं भेजना तो आज भेजूंगा, और NCERT क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, ऑलराइट। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, प्लीज कीप स्टडीइंग।